भाई बाड़ी विंडो पे कहाँ काम करते हैं, इनका तो iOS चलते हैं, एप्पल चलता है सिर्फ, पता है मुझे। iOS और एप्पल में क्या करते हैं, लेकिन उसे वैसे समझ कर दिया। यस सर। Yes, please. In the previous classes, we were describing about the speed characteristics of the DC motor. Speed characteristics means speed of the shunt motor, series motor, and the compound motor. So, if you remember that something, whatever was covered in the previous class, we have just a revision of that. This is the supply voltage in the DC motor. It is supply voltage. The resistance of it is say RA. Current flowing is IA. So V voltage V minus IA RA. This is the back EMF which will be developed here. Okay. This is the back EMF. This back EMF will be responsible. This back EMF E. V minus IA RA. This is the E. This is the back EMF developed here. This will be responsible for producing the speed. So this E, according to the E, there will be K phi omega. Angular speed is there. Yes. This omega will be equal to V minus IA RA by K phi. So what is the meaning of this? It means if you increase the here in the armature, if you increase the resistance, so IARA will be more, speed will be less. Or if you increase the load, so what will happen? Load means if you increase the load, torque will increase, so current will increase. If you increase the current, I will increase. It means if I increases, so graph, what will be the graph? Between the omega and I, omega decrease. when current is 0, or you can say load is 0, current is 0, so speed is equal to V by K phi. This is the speed V by K phi, you can say omega 0. And if you increase this load, this speed will be like this. Okay? And what is this? ये क्या है? This is IARA drop. Okay. Now, and there are two basic equations which we described so far. This is the one very important equation. Another is the torque is equal to K phi I. This is also a very important equation. So here you can say this omega is equal to V by K phi minus this R by K phi. You can write R by K phi. R by K phi in place of I. You can, this is IA. In place of I is equal to torque by K phi. Torque by K phi square. Okay. So from here also, you see, if the torque increases, from here, if the torque increases, what will be the speed? From here also you can say this.
If the torque increases, the speed will go like this. This is the initial speed omega 0. If you increase the torque, speed will be like this. Torque is 0, speed is full. When you increase the torque, this will be like this. Okay? यहाँ तक किसी को कोई problem है? So if you want to control the speed of the motor, what you will do? Increase the resistance here. If you increase the resistance, IR drop will increase, and this speed will be controlled. Now, what about the in case of series motor? In case of series motor, this V minus, here you see the resistance of this is say RSE. So V minus this V, this is the load current. Depending upon what is the load connected here, there will be this current I. So V minus IA, यहाँ क्या आएगा? IA into resistance of this as well as resistance of the series field winding. So IA RA plus RSC is equal to E. Okay, and this again E is equal to same. E is equal to K phi omega. E is equal to K phi omega. You have already. This is always there. So what will be this omega? Omega will be V by K phi minus IA RA plus RLC divided by K phi. Okay. Now, what is the in the beginning when torque is very small, when say torque is 0, what is the current? If the torque is 0 here means no load is connected, load is not connected, torque is 0, so what will be the I? 0. So in this case torque equal to K phi I will be 0. Now you see when I is 0 here, when I is 0 here, current is 0, so what will be the phi? Because of the flux, this phi is produced because of the I. So what about the phi? When current is 0, what will be the flux? 0. In case of series. So when this flux is 0, what will be the speed? What will be the speed? When flux is 0, what is the speed? I. Okay. Oh, what it tells? ये क्या बता रहा है? And here we know, you see this torque is equal to K phi I, and phi is also proportional to I. Okay, this phi is also proportional to I. Torque is equal to K I A square. Is this one clear? So in this way, you can say phi is proportional to I. So this omega will be equal to V by under root P minus RA. Here also you see when torque by speed. If you increase this graph, if you plot this graph also, this will be the torque and speed. So from both the equation it is clear. If the torque is 0 or torque is very small, 0 is never possible because there will be always some torque because of the rotor, the inertia of the rotor, there will be some torque, very small torque, so very small current. So when the very small current, the speed will be very high. It means speed can be infinite. If we start the DC series motor at no load, इसका मतलब क्या हुआ? If we start the DC series motor at no load, speed will be very high.
This is the reason. It is always asked the question, why DC series motor is not started at no load. DC series motor को ऐसा नहीं है आपने नो लोड नहीं लगाया और स्टार्ट। शंट मोटर में क्या स्टार्टर लिया ऑन कर दिया। तो DC series motor cannot be made directly on. We cannot make it on directly. Means DC series motor has to be started. First connect the load, then start the machine. This point is clear or not? So that's why DC series motor in place. If you go to the industries, say at the floor mein DC series motor will be not used. But where it is used? What is the application of DC series motor? See, in the traction. At the railway, the electric trains, they are moving on DC series motor because there is always a torque on that. Even if the passengers are not there, there is a heavy torque. So that's why DC series motor are started at load. Means always there is a load. Say this is a load, so this will be the speed. Load can be here to here depending upon the passenger, but speed will always be here. Okay, this is the reason why the small area का DC series not started at no load. Now, एरिया नेगलेक्ट कर दिया होगा तो आई now you see ए होता है speed current characteristics of this. तो एरिया स्मॉल होगा बहुत तो आई बचा होगा। See here, you have seen this is the shunt speed versus torque. Okay, or IA load or IA. So this is the shunt motor characteristics, and this is the speed and torque series motor characteristics. Okay. Now when both are there, this is series field phi SE and phi SH. When both are there, so net flux will be the sum of the, here in case of this torque is equal to K phi omega K phi I. So this phi is equal to phi SH plus phi SE. So because of this flux, both the flux are there. So what will be the E? Then because of this, if the flux has been increased both because of this and because of this, so for the same amount of torque, speed will be in this case. Say, here you see, as the phi is more, speed is less. Here you see, phi, in case of here, if the flux increases in comparison to this, because why the flux will increase? Because the current has increased. Because this current depends upon the load, but this current does not depend upon the load. This is a constant, and here it depends upon the load. So when the load increase, this current increase, this flux increase, the speed will be reduced. Means when both are there, the cumulative compound characteristic will be like this. Cumulative compound characteristic will be like this. Cumulative क्या होता है? इसका फील्ड सपोज इस डायरेक्शन में और इसका फील्ड भी इस डायरेक्शन में, टोटल फ्लक्स विल बी दिस. There can be cumulative compound, there can be differential compound. Differential compound means if this binding is such that इसकी करंट ये टर्मिनल यहाँ कनेक्ट हो, ये टर्मिनल यहाँ कनेक्ट हो, so current will be negative. Net flux will be the phi SH minus phi SE. That is the differential compound. So in that case, part में flux will be reduced. Yeah, flux will be reduced, so speed will increase. So it is a differential compound. इसे देखता है मैंने देखा नहीं. It is a differential compound. Okay. Okay. So now you see, you have seen the shunt motor and series motor. In case of shunt motor, you know, in case of shunt motor,
if the current is increased, the speed will go down. Or resistance is increased. Say if you increase the resistance here, if you increase this resistance, what will happen? If you increase this resistance, so speed will be reduced. पहला आपका ये characteristics है. आइए RA drop in place of this. Suppose in place of RA there is a total R. This R is equal to RA plus RSH. तो आपका characteristics ये हो जाएगा. ये RA है, ये RSH आइए. तो सेम टॉर्क के लिए आपकी स्पीड आपकी पहले स्पीड ये थी, अब स्पीड ये हो गई. So it means if you increase the resistance, speed will go down. Shunt resistance में क्या है? In case of a shunt motor, if you increase the resistance of the armature, speed will go down. तो आपकी if the normal speed is 1500 rpm, if the normal speed is 1500 rpm, then if you go on increasing the resistance, the speed will go down. 15 से आपका 1200, 1100, 10, 1900 like this. Now here what happens? In case of a, this is the armature control. Here means here if you increase the resistance here, see this is the armature control, armature resistance. If you increase the resistance here, as I told, if you increase the resistance here, speed will go down. Now if you increase the resistance here, suppose if you increase the resistance here, then what will happen? This current will be reduced. current reduce. So flux will be reduced. When flux will be reduced, speed will increase. तो क्या होगा? ये characteristics आपका in place of this. earlier this is the characteristic. This can be the characteristics. This can be characteristics. So for the same torque, of same current, the speed will be high. Yeah. Okay. So it means if you want to reduce the speed, do the armature control. If you want to increase the speed to the normal speed, do the field control. Now in addition to that, one more very important control is the Ball-Jeunet method of speed control. इसमें किसी को कुछ पूछना है? Next. सर इसको डाउट There is a method called the Ball-Jeunet method. भाई गेले गेलो जो उस पर गिरी से एक तो का लेजेंड क्लियर नहीं आ रहा है. देखिए टेढ़ा है. मेरे इंस्टा की फीड खराब हो रही है मुझसे. ये देखना टेढ़ा है. नंबर मुश्किल हो रहा है. स्पीड कंट्रोल मैं कह रहा टेढ़ा तो हाँ भाई ब्राइटनेस थोड़ा उतनी थी करा था परसों जाना बस. हाँ हाँ कल ले मैं कह रहा स्क्रीन सांझ ये कह दे स्क्रीन टेढ़ी है. बस वो दिया मैं बड़ा हूँ मैं पहली साइड पे इसमें ट्रेन में एक तेरे पे मैं परली साइड बस वो दिया किसके साथ हो जाए वीडियो भेजो वीडियो के साथ भेज देखिए मजा आता है. बहुत अच्छी वीडियो है ज्ञान की वीडियो बहुत अच्छी वीडियो है. Now you see, this is generator G. And this is motor. Okay, and we want to control the speed. देखिए, one is the armature control and another is the field control. You know. Now, in this method, this speed of this is the motor. So speed of this, the formula if you remember, it was
V by K phi IA RA by K phi. You remember this formula? इतना क्या 104 This is a shunt motor. इसकी स्पीड कंट्रोल करना है. We have to control the speed of this. This is shunt motor. So it means to control the speed of this motor, we have this formula. So and what is this phi? This phi is of this. जिसको पहले लिंक भेजा इसका ये phi है. Now नहीं है and how much? This is the voltage. This is the voltage V, which is applied here. टेलीग्राम पे Now how much voltage is applied? इसका हमें स्पीड कंट्रोल करना है. एक तो जो हमारा फील्ड कंट्रोल था, इफ यू रिमेम्बर द फील्ड कंट्रोल, हम क्या करते थे उसमें आर्मेचर में रेजिस्टेंस लगाते थे. आर्मेचर में रेजिस्टेंस लगाते थे तो आई आर ए ड्रॉप हुआ प्लस आई स्क्वायर आर ए. आई स्क्वायर आर ए क्या है? लॉसेस इन द आर्मेचर. और आई स्क्वायर आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है. सीरीज रेजिस्टेंस आर्मेचर रेजिस्टेंस के सीरीज में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते थे. तो आई ए स्क्वायर आर एक्सटर्नल, ये वेयर इट इज गोइंग, ये जो एनर्जी था आई स्क्वायर आर क्या है? लॉस. तो ये लॉस कहाँ? आपका रेजिस्टेंस में. रेजिस्टेंस नहीं, सिंपली रेजिस्टेंस हीट में सिंपली रेजिस्टेंस में आपका ये लॉस हो जाता था. आई स्क्वायर आर हीटिंग लॉस में कन्वर्ट हो जाता था. अब वी आर नॉट डूइंग दैट. हम आर्मेचर को देखिए था ना, वी आर इंक्रीजिंग दिस रेजिस्टेंस. अब हम इस रेजिस्टेंस को नहीं बढ़ा रहे हैं. वी आर कंट्रोलिंग द स्पीड बाय कंट्रोलिंग दिस V. इस वोल्टेज को कंट्रोल करके स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं. हाउ द वोल्टेज विल बी कंट्रोल्ड? टू इन दिस मोटर, हाउ दिस विल बी कंट्रोल्ड? दिस मोटर इज सप्लाइंग ए वेरिएबल वोल्टेज थ्रू द जनरेटर. ये जनरेटर, दिस इज डीसी जनरेटर. इससे हमने, इट इज डीसी जनरेटर. डीसी जनरेटर कितना वोल्टेज देगा? E इक्वल टू K पाई ओमेगा. ठीक है. वी कॉल इट EG जनरेटर. इतना वोल्टेज देगा. ओ एंड दिस EG, यू सी दिस EG माइनस IA RAG इज इक्वल टू E. ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? ये E इक्वल टू K phi ओमेगा. इतना वोल्टेज होगा EG, इतना वोल्टेज जनरेट होगा. इसमें आई आर ए ड्रॉप हो गया. रेजिस्टेंस आर ए क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ दिस RAG और आई ए इज दिस करंट. सो EG माइनस आई आर ए, ये आपका वोल्टेज मिल गया. नाउ फ्रॉम देयर दिस स्पीड विल, देखिए फ्लक्स कहाँ से आएगा? दिस इज द फ्लक्स फॉर दिस. यहाँ फाई आएगा, इसका फाई G. ओके. नाउ फ्रॉम दिस फ्लक्स तो यहाँ से आ गया. और just to generate this voltage, just to generate this voltage, we have to have phi and omega. तो ओमेगा कहाँ से आएगा? जनरेट वोल्टेज करने के लिए ओमेगा कहाँ से आएगा? क्योंकि जब ये जनरेट वोल्टेज करेगा, ये वोल्टेज तो अप्लाई होगा. एंड वी वांट टू हैव द वेरिएबल वोल्टेज. तो ये आएगा कहाँ से? वोल्टेज. सो टू हैव दिस वोल्टेज, वी हैव अनदर मशीन कॉल्ड द इंडक्शन मोटर. ये अनदर 3-phase इंडक्शन मोटर. इट इज 3-phase इंडक्शन मोटर. इंडक्शन मोटर क्या? 3-phase सप्लाई देंगे. व्हेन यू गिव द 3-phase सप्लाई, क्या करेगा? इट विल हैव द रोटेशन ओमेगा. तो जो भी स्पीड है 120F/P, अकॉर्डिंग टू दैट देयर विल बी स्पीड हियर ओमेगा. तो आपको इंडक्शन मोटर 3-phase AC सप्लाई दिया, उससे आपका स्पीड आ गई, टॉर्क आ गया, स्पीड आ गया, उससे ये मिल गया. नाउ जस्ट टू जनरेट दिस वोल्टेज, ये जो ओनली ओमेगा इज सफिशिएंट. ओमेगा सफिशिएंट है. फाई इज आल्सो रिक्वायर्ड. तो फाई कहाँ से आएगा? जस्ट टू गिव दिस एज ए, इसको फ्लक्स, ये फाई यहाँ से आ रहा ना, इट मींस देयर शुड बी ए डीसी सप्लाई प्लस और माइनस. ये कहाँ से आएगा? ऑन दिस देयर इज ए
DC shunt generator which is connected with this. It is a सर कितना खर्चता है वैसे वीडियो बनवाऊँ प्लस माइनस प्लस ये कनेक्ट हो गया और माइनस ये कनेक्ट हो गया। अरे बंद कर देंगे अब देखिए इस मोटर को कंट्रोल करने के लिए उसमें एनर्जी का लॉस नहीं हो इसके लिए हमने इसमें डीसी क्या लगाया है, ये जनरेटर लगाया है। लेकिन डीसी जनरेटर कहाँ से सप्लाई होगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर लगाया है। इंडक्शन और इसका फील्ड कहाँ से मिलेगा, ये डीसी ये लगाया है। तो इस मोटर सपोज करिए ये आपकी 100 किलोवाट मोटर है, डीसी मोटर जिसे आपको कंट्रोल करना है। तो इसको ये मोटर है, इसको सप्लाई पावर कहाँ से मिल रहा है, टॉर्क तो शाफ्ट पे टॉर्क लगा हुआ है, शाफ्ट पे टॉर्क लगा हुआ है, बट इसे पावर कहाँ से मिल रहा है, इनपुट पावर जनरेटर से मिल रहा है। तो जनरेटर का साइज क्या होना चाहिए, लगभग जो इसका है लॉसेस अगर 2-4-5% है तो लगभग इसी साइज का ये होना चाहिए। तो ये हमारा हुआ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर को आपका टॉर्क और ओमेगा कहाँ से मिल रहा है, इंडक्शन मोटर से। तो इंडक्शन मोटर ये अगर 100 किलोवाट का है तो ये क्या होना चाहिए, 100 किलोवाट से थोड़ा सा ज्यादा, तो ये भी लगभग उसी का रेंज का होना चाहिए। तो मोटर एंड जनरेटर आर या मोटर और जनरेटर और मशीन सेम होता है, तो जो इसका साइज दिखेगा 100 किलोवाट का, इसका भी साइज वही होगा। लेकिन एसी मशीन इंडक्शन मोटर का 100 किलोवाट की आप इंडक्शन मोटर 100 किलोवाट का डीसी मोटर देखेंगे तो साइज ऑफ इंडक्शन मोटर इज स्लाइटली लेस। क्यों, डीसी में क्या होता है, प्रोजेक्टेड पोल्स होते हैं, सो एयर गैप इज टू मच, लीकेज इज टू मच, तो उसमें लीकेज लॉसेस आर टू मच, सो एफिशिएंसी ऑफ डीसी स्पार्किंग इज आल्सो देयर, सो एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन इज लेस एज कंपेयर टू द एसी मशीन। इसका मतलब क्या हुआ, सेम किलोवाट का 100 किलोवाट का या सेम पावर का आपका इंडक्शन मोटर का साइज इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा, थोड़ा सा कम दिख रहा है। और जस्ट टू सप्लाई दिस, अब इसको फील्ड चाहिए, इसको फील्ड की पावर कितनी होनी चाहिए, फील्ड जस्ट टू सप्लाई द फील्ड में कितना पावर कंज्यूम होता है, मेनली जो पावर है, मेनली पावर कहाँ कंज्यूम हो रहा है, शाफ्ट पर कंज्यूम हो रहा है, दैट इज द एक्टिव पावर। फील्ड जस्ट टू प्रोड्यूस द फील्ड ओनली वेरी स्मॉल करंट इज नीडेड, क्योंकि इसमें एक्टिव पावर एक्चुअली में कंज्यूम नहीं होना चाहिए, सो ओनली वेरी स्मॉल करंट इज रिक्वायर्ड, सो दैट्स व्हाई साइज ऑफ दिस डीसी जनरेटर, दिस इज एक्साइटर, इट इज कॉल्ड द जस्ट टू प्रोवाइड द फील्ड, इसमें फील्ड देने के लिए लगाया, इसलिए इसका साइज बहुत कम हो गया। नाउ क्वेश्चन ये नहीं है, अब बात ये है कि अब देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये वोल्टेज आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं, इसका वोल्टेज E इक्वल टू फाई ओमेगा, फाई कंट्रोलिंग दिस फाई ये रेजिस्टेंस, ये फाई की वैल्यू यहां से अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द वोल्टेज अप्लाइड द फाई विल बी कंट्रोल्ड। अगर आप इसको फाई की वैल्यू, तो ये जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स था मेरा ही है, ये था आपका V बाई के फाई वाई ओमेगा, तो आपका फाई की वैल्यू यू कैन कंट्रोल हियर, सॉरी ये चश्मा ला लेके गोटा ला दे, अरे उसमें ढीला होगा, नाउ यू सी, अरे ढीला होगा, इसको अगर आपने फाई की वैल्यू कंट्रोल कर ली तो दिस फाई की वैल्यू कंट्रोल कर दी तो ये EG ये क्या है, के फाई ऑफ दिस, फाई ऑफ जनरेटर खराब हो जाएगा, यहाँ से आपको फाई ऑफ जनरेटर कंट्रोल करेगा, EG कंट्रोल हो जाएगा, व्हेन EG इज कंट्रोल द वोल्टेज, ये वोल्टेज आपका यहाँ कंट्रोल हो गया, तो आपका वोल्टेज ही कंट्रोल हुआ, ये वोल्टेज कंट्रोल हुआ कि नहीं, तो इससे क्या होगा, स्पीड आपकी अकॉर्डिंगली अब आपकी पहले ये ऐसा है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, आपका फाई ये है, ये अकॉर्डिंगली लोड के अकॉर्डिंगली स्पीड मिलेगा। ओके, नाउ
तो ये सपोज करो ये नॉर्मल स्पीड था, दिस इज द नॉर्मल स्पीड। नॉर्मल मतलब v बाई के फाई स्टार्टिंग में v बाई के फाई 0 इनिशियल। यहाँ तो फील हो गया, ये तो मेरी भी आता हो रही है। अब आपने देखिए इसका रेजिस्टेंस, इसका फील्ड कंट्रोल करके क्या करेंगे, यहाँ साथ ही इसका फील्ड कंट्रोल करके so see this here, this is the then v by k phi initially here by controlling this flux, what is happening, this you are controlling E, so the voltage is controlled, this is controlled। तो आपका क्या होगा, ये आपका यहाँ से या क्या कर सकते हैं आप, आई तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, फाई को आप नाउ बाय कंट्रोलिंग दिस फील्ड, इससे क्या हो रहा है, आर्मेचर कंट्रोल हो रहा है। बाय कंट्रोलिंग दिस फ्लक्स को आप यहाँ अगर बढ़ा देंगे, इसको फ्लक्स को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये ईजी आपका बढ़ जाएगा। यस सर। और इस फ्लक्स को आप नहीं, इसमें आप रेजिस्टेंस लगाएंगे, रेजिस्टेंस लगाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा कम होगा, कम फ्लक्स कम ही हो सकता है हमेशा। तो फ्लक्स कम होगा तो वोल्टेज आपका कम होगा, वोल्टेज कम होगा तो स्पीड हमारी ऐसा आ जाएगी। ओके नाउ अब देखिए इसमें इस फ्लक्स को बढ़ा सकते हैं, इसको बढ़ाने से क्या होगा, ये मोटर का फ्लक्स है, ये आपका मोटर का फ्लक्स है फाई एम। इसको फ्लक्स, इसको क्या करेंगे, रेजिस्टेंस, इसमें हमने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। इसका फ्लक्स कम होगा ये, तो क्या होगा, वोल्ट आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले अगर ये स्पीड थी, यू विल गेट दिस, मतलब ये हमारा आर्मेचर कंट्रोल हो गया, ये फील्ड कंट्रोल हो गया। वी कैन गो बिलो नॉर्मल एंड एबव नॉर्मल। तो ये जो वोल्टेज है बिलो नॉर्मल हम कहाँ से ला सकते हैं, ये बिलो नॉर्मल हम जीरो स्पीड, कुछ भी स्पीड ला सकते हैं। एबव नॉर्मल इस फ्लक्स को कंट्रोल करके कर सकते हैं। ओके नाउ इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, ये ट्रेडर ही है, ये यहाँ से दिस कनेक्शन, दिस कैन बी कनेक्टेड हियर, दिस कैन बी कनेक्टेड हियर, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो दिस B, if you see this B, अगर आपने ये टर्मिनल यहाँ कनेक्ट कर दिया, ये टर्मिनल यहाँ कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसमें आपका पहला करंट ऐसा फ्लो हो रही थी, जब ये टर्मिनल ऐसा कर देंगे तो इसमें करंट नेगेटिव अपोजिट जाएगी, करंट नेगेटिव, यहाँ वोल्टेज अपोजिट हो जाएगा, तो इसकी स्पीड भी नेगेटिव, मींस इट विल बी लाइक दिस। कनेक्शन चेंज हो, मतलब पहले आपका अगर सपोज ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था, फिर एंटी क्लॉकवाइज में आ सकता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बाल-ल्यूनार्ड मेथड, मतलब इट इज ए 4 क्वाड्रेंट मेथड, इट इज ए 4 क्वाड्रेंट मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल। मतलब देखिए इसमें भी आपका डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच this load is, how much load is connected, the speed will, you can say how much depending upon load, ये आपका स्पीड कम होती जा रही है और ये आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में होती जा रही है। इन एडिशन टू दैट अगर आप देखिए यू कैन वर्क इन दिस हियर आल्सो, मींस स्पीड दिस है लेकिन आपका टॉर्क नेगेटिव है, स्पीड ये नेगेटिव है लेकिन आपका ये यहाँ देखिए स्पीड इस डायरेक्शन में आ गई, स्पीड नेगेटिव है, टॉर्क पॉजिटिव है, मींस वी कैन वर्क इन द ऑल 4 क्वाड्रेंट। तो हमारा 4 क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, स्पीड ऐसे घूम सकती है, फिर ऐसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा जब क्या कर सकते हैं, जब आपका स्पीड तो ऐसे घूम रही हो
लेकिन टॉर्क नेगेटिव हो। टॉर्क नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, उस समय ये जो मोटर है, मोटर विल नॉट एक्ट एज ए मोटर, ये जो एक्स्ट्रा एडिशनल एनर्जी है इट विल बी फीडबैक टू दिस, मतलब ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये एनर्जी इसको दे रहा है, दिस विल एक्ट एज ए जनरेटर आल्सो। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट, यू सी हियर V is equal to this V is equal to V minus IARAM is equal to EM। ठीक है, जो वोल्टेज यहाँ लग रहा है, जो वोल्टेज यहाँ लग रहा है उसमें से IARA ड्रॉप हो गया, RAM क्यों लिख रहा हूँ, आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ मोटर, RA is equal to इसका बैक EMF। ओके, सो इफ यू पुट दिस V here, if you put this V here, what will be this, ये दोनों इक्वल हो गए, in place of V minus IARA is equal to EM, तो आप V की जगह यहाँ EG minus IARAG, V की जगह क्या लिख सकते हैं आप, EM माइनस EM प्लस IARAM। ओके, so from what will happen, EG minus EA is equal to IA, if you take common it is a RAG plus RAM। इससे क्या निकला, IA आर्मेचर करंट इक्वल टू EGA माइनस EM और मोटर डिवाइडेड बाई RAG प्लस RAM। ठीक है, ये आर्मेचर करंट हो गई। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम, जब हम इसको इस टर्मिनल को यहाँ, इस टर्मिनल को यहाँ कनेक्ट कर दें, क्यों कर रहे हैं कनेक्ट, जस्ट द रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन। मोटर ऐसा रन कर रहा था क्लॉकवाइज, हम चाहते हैं अपोजिट रन करें, तो जब अपोजिट रन करने के लिए हमने इसका ये चेंज कर दिया, तो ये क्या होगा, यहाँ वोल्टेज पॉजिटिव था नेगेटिव लग गया, सो साइज दिस EM विल बी इन प्लेस ऑफ EM इट विल बी प्लस EM। तो आप देखिए ये इसका वोल्टेज क्या है, सपोज दिस इज 220 वोल्ट, ये 220 वोल्ट था, उसमें कुछ IARA ड्रॉप हो गया, यहाँ कितना आया होगा, सपोज 210 आ गया, अब 210 में से IARA ड्रॉप होकर क्या आ गया इधर, सपोज 190 आ गया, या ये 220 था, ये 210 आ गया, फिर आपका 210 से 200 हो गया। ठीक है, अब हमने इसको ये जो 200 है इसका रिवर्सल कर दिया, तो ये क्या था 220 माइनस 200 ये करके था, अब माइनस की जगह क्या होगा, प्लस हो गया। सो व्हाट, अगर ये 200 माइनस 220 माइनस 200 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, सपोज ये 10 ओम, 10 ओम, 20 ओम, तो व्हाट इज द करंट, इस केस में क्या हुआ करंट 1 एम्पियर इन प्लेस ऑफ माइनस इफ प्लस। अब कितनी करंट होगी, कितनी होगी, तो ये 400 डिवाइड बाई 2 मोर देन 20 एम्पियर। तो आपका जो 1 एम्पियर करंट थी, सपोज लोड करंट इज 1 पर यूनिट, उसकी जगह कितनी हो गई 20 टाइम्स। सो दिस इज हैवी, वेरी हैवी करंट, कैन नॉट बी अलाउड। अगर लोड करंट क्या बता रहा है, ये मोटर आपका 1 एम्पियर करंट के लिए बना है, एक की जगह आप 1.25 तो ले लेगा, लेकिन आप 20 एम्पियर करंट ले सकता है। सो वी कैन नॉट, इसका मतलब हुआ वी कैन नॉट डायरेक्टली रिवर्स दिस, इसको रिवर्स नहीं कर सकते। अगर रिवर्स कर दें तो बहुत हैवी करंट फ्लो करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, रिवर्स करते वक्त, इसको रिवर्स करते वक्त एक स्विच लगाकर रिवर्स करते वक्त इसमें हैवी रेजिस्टेंस लगा के, यहाँ पे आपका RAG प्लस RAM प्लस R एक्सटर्नल, अगर R एक्सटर्नल के बराबर है, यहाँ फिर क्या हो जाएगा R एक्सटर्नल हम चाहते हैं इसमें 1 या 2 एम्पियर, मान लो 20 एम्पियर की जगह हम चाहते हैं 2 एम्पियर हो जाए या 3 एम्पियर तक हो जाए, तो कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, कितना रेजिस्टेंस लगाएंगे, आपका ये 400 था ना, 400 बाई 20 तो था ही, ये 20 एम्पियर आ रहा था, 3 एम्पियर आए, तो कितना होना चाहिए यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू, जस्ट टू हैव 3 एम्पियर,
Just to have 3 ampere. हाँ, मान लो 100, तो चलो 100 ओम लगा दिया तो भी आपका 3 पॉइंट समथिंग आ गया। तो ये आपका रजिस्टेंस मींस इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा के हम करेंगे। तो अब क्या होगा, करंट की वैल्यू तो कम हो जाएगी और अपोजिट करंट की वैल्यू कम हो जाएगी और ई विल बी नेगेटिव, तो टॉर्क नेगेटिव होगा। टॉर्क नेगेटिव होगा इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे ही स्पीड तो उसी डायरेक्शन में घूम रही है लेकिन जो एनर्जी थी आपकी वो बैक लेके टॉर्क नेगेटिव हो गया, तो टॉर्क इनटू ओमेगा माइनस एनर्जी विल बी सेंट टू हियर, मतलब इसमें ब्रेकिंग की तरह काम करेगा। दिस विल एक्ट एज ए ब्रेकिंग, ये स्पीड इसकी कम होगी और जो एडिशनल एनर्जी थी वो यहाँ जाएगा। सो देयर आर नाउ दिस ब्रेकिंग इज अगेन ऑफ 3 टाइप्स, प्लगिंग, डायनामिक एंड रिजनरेटिव ब्रेकिंग। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्क्राइब व्हाट इज द ब्रेकिंग। ओके, सो स्पीड कंट्रोल इज ओके, shunt motor speed control and further the field control, armature control, then field control, then longitudinal method, just to have the 4 quadrant operation. Then how the braking is applied in case of a shunt motor, that we will describe in the next class. Okay, अब पूछो, किसी का पूछो। डाउट भाई बस पूछ रहा हूँ, पूछ ले। डाउट सॉल्व कर दे, बता हो गया तो इसका। थैंक यू।